Hello everyone, welcome to P3 Talks. In today's video, we're going to talk about border disputes of India with China. So before we get started, we need to know what are the relevant questions from SSB point of view. उसी में we are going to cover several subtopics like border disputes of India and China, what is Aksai Chin, what is Sakshagam Valley, Doklam region standoff. There are several international border lines like Johnson's Line, McDonald Line, McMahon Line. We are going to discuss about the dispute in the Tawang region, what is line of actual control, that is LAC, what is Chumbi Valley, its significance for China, its significance for India. Also, we're going to talk about Siliguri corridor and the Chicken's Neck and the significance of this particular area for India and China. On the screen, you can see the map of India and the neighboring countries: Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka. See how much length are we sharing of border with which country. Like with Bangladesh, we are sharing 4,096 kilometers, with China 3,488 kilometers, Pakistan 3,323, and respectively with Afghanistan 106 kilometers only. So in today's video we are specifically going to talk about China. So first thing जो आपको याद रखनी है वो ये है, चाइना के साथ हमारे 4 स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. इसके साथ साथ एक यूनियन टेरिटरी, न्यू यूनियन टेरिटरी लद्दाख भी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था. Now let's talk about the Sino-Indian border. It is generally divided into 3 sectors. The first one is the western sector, the second sector is the middle sector, and the third one is called the eastern sector. Now let us study about each. So the first one being the western sector. पहले सेक्टर में जो टोटल लेंथ हम शेयर करते हैं वो है 2152 किलोमीटर्स. मैप में आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफ़ी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं एंड मेनली जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो है एक्साई चीन. एक्साई चीन के बारे में हम डीप में देखते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्साई चीन इन डिटेल. एक्साई चीन आपको मैप पे दिख रहा है रेड कलर में. ये एक्साई चीन है, ये एक ह्यूज डेजर्ट है. 1950 तक यहाँ पे ज़्यादा हलचल नहीं हुआ करती थी, पर 1950 में यहाँ पे चाइनीज़ मिलिट्री ने रोड्स बनाने स्टार्ट करे. वो तिब्बत और जिनजियांग रीजन को कनेक्ट करना चाहते थे एंड इस पर्टिकुलर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इंडिया ने ऑब्जेक्ट करा एंड इसी ऑब्जेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस बढ़ गए थे एंड इवेंचुअली देयर वाज ए वॉर बिटवीन द 2 कंट्रीज इन द ईयर 1962. और इस वॉर के कंक्लूजन में ये हुआ कि चाइना ने ये पूरा एक्साई चीन वाला एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था, दैट इज़ 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स. और ये जो एरिया है ये आज तक भी बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में. Of Aksai Chin can be rooted to the colonial period in India. At that time there were 2 lines proposed. One was the Johnson line and the other one was the McDonald line. Both the countries have their own perception of these lines and hence Aksai Chin remains the bone of contention between the 2 countries. Let us understand these lines on a map. पहली लाइन जो आपने देखनी है वो ये ब्लू वाली लाइन है, इसको बोला जाता है जॉनसन लाइन, जिसके हिसाब से एक्साई चीन वाला पार्ट इंडिया को बिलोंग करता है. सेकेंड लाइन जो आपने देखनी है वो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है इसको बोला जाता है मैकडोनल्ड लाइन, इसके हिसाब से एक्साई चीन वाला पार्ट चाइना को बिलोंग करता है. इसके अलावा दोनों ही कंट्रीज़ का एक डिफरेंट परसेप्शन है इन लाइंस का, यानी कि ये जो ऑरेंज वाली लाइन आपको दिख रही है ये है चाइनीज़ लाइन ऑफ परसेप्शन, यानी कि चाइना के हिसाब से इस लाइन के इस तरफ वाला जो पूरा पोर्शन है वो चाइना को बिलोंग करता है. On the other hand, this green line that you see, this is India's line of perception. यानी कि इंडिया के हिसाब से ये वाला जो पूरा एरिया है ये इंडिया को बिलोंग करता है एंड ये वाला एरिया चाइना को बिलोंग करता है. Now if we talk about present line of actual control, LAC is the actual line between India and China, but now again this is not recognized as a international boundary because of virtue of instrument of accession. Instrument of accession जो जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया के बीच में साइन हुआ था, अकॉर्डिंग टू दैट जितना भी एरिया JNK का है इंक्लूडिंग एक्साई चीन, इंक्लूडिंग POK, ऑल दीज एरियाज बिलोंग टू इंडिया. दैट्स वाई ये वाली जो लाइन है इसको कोई इंटरनेशनल बाउंड्री का रिकग्निशन नहीं है, बट स्टिल
इंडिया और चाइना की जो मिलिट्री है वो LAC को मानते हैं। टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया, सक्शगम वैली। सक्शगम वैली जो मैप में आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है, ये पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा था। ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। इट मीन्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के हिसाब से इट बिलोंग्स टू इंडिया। ये एक डिस्प्यूटेड एरिया था एंड पाकिस्तान ने इन द ईयर 1963 इस डिस्प्यूटेड एरिया को चाइना को गिफ्ट कर दिया था। अब बात करते हैं मिडिल सेक्टर की। मिडिल सेक्टर यू कैन सी ऑन द मैप, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे जो बॉर्डर शेयरिंग हो रही है उसको हम बोल रहे हैं मिडिल सेक्टर। यहाँ पे जो टोटल लेंथ है बॉर्डर का दैट इज 625 किलोमीटर्स। इसके अलावा इस एरिया में कोई बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है नहीं दोनों कंट्रीज के बीच में। अब बात करते हैं डोकलाम स्टैंड ऑफ के बारे में। डोकलाम क्या है? इट्स ए प्लेटू जहाँ कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन ए ट्राई जंक्शन जहाँ पे इंडिया, चाइना और भूटान के बाउंड्रीज मिलते हैं सिक्किम के पास। ऑन द मैप यू कैन सी दिस इज डोकलाम रीजन। Now what was the problem here? The problem was that Chinese military started constructing roads in this particular area and ये जो रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था उसको इंडिया ने काफ़ी स्ट्रांगली अपोज किया था। लेट अस अंडरस्टैंड कि जब डोकलाम रीजन इंडिया को नहीं बिलोंग करता, इट्स ए डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन भूटान एंड चाइना, तो उस टाइम पे इंडिया ने इतना स्ट्रांग स्टैंड क्यों लिया? द फर्स्ट थिंग इज भूटान और इंडिया के बीच में काफ़ी कॉर्डियल रिलेशनशिप है। ऑल्सो इन द ईयर 2007 हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी थी जिसके हिसाब से जब जब भूटान को ज़रूरत होगी हमारी, हम बिल्कुल जाके उनकी हेल्प करेंगे। सेकेंड पॉइंट जिसकी वजह से इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया इस पर्टिकुलर रीजन में वो ये था कि चाइनीज़ मिलिट्री की प्रेजेंस होना चुम्बी वैली और डोकलाम के बीच में हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आप मैप पे देख सकते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यहाँ पे। नाउ इस कॉरिडोर के थ्रू ही हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट्स हैं वो मेनलैंड चाइना से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। नाउ यू इमेजिन अगर चाइनीज़ की मिलिट्री की प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है तो शेलिंग करके वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट्स हैं हमारे उसको मेनलैंड चाइना से एकदम कट ऑफ किया जा सकता है। दैट इज़ द रीज़न वाई वी स्ट्रांगली अपोज दिस। हमने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी भूटान की एंड इवेंचुअली जो रोड कंस्ट्रक्शन था ये वाले एरिया में वो चाइना को रोकना पड़ा था। About the third sector, that is the eastern sector, you can see on the map in this particular area, इसको बोला जाता है ईस्टर्न सेक्टर। टोटल लेंथ जो है बाउंड्री का वो है 1140 किलोमीटर्स। 1914 में शिमला कन्वेंशन हुआ था जिसके हिसाब से तिब्बत, चाइना और जो ब्रिटिश इंडियन अथॉरिटीज़ थी उन्होंने मिलके ये लाइन प्रपोज की गई थी। ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसको तिब्बतन अथॉरिटीज़ ने एक्सेप्ट किया है, इंडिया ने एक्सेप्ट किया है, बट चाइना इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करता बिकॉज चाइना का ये मानना है कि वो तिब्बत को एक सोवरेन कंट्री नहीं मानते और जो भी डील, जो भी बातें तिब्बतन अथॉरिटी के साथ हुई हैं बिल्कुल चाइना उसको वैलिडिटी नहीं देता है। इसीलिए कहीं ना कहीं इस रीजन में काफ़ी डिस्प्यूट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी सारा एरिया चाइना अपने पार्ट में क्लेम करता है। इस जोन में जो मेजर डिस्प्यूट वाला एरिया है वो है दिस तवांग रीजन। तवांग रीजन को चाइना बोलता है साउथ तिब्बत और आज की डेट में ये अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। So we have spoken about all the three sectors and the major disputed areas in all the three sectors. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप समझ सकते हैं यहाँ पे वो ये है, इफ़ यू गूगल इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर, दीज आर द काइंड ऑफ इमेजेस यू आर गोइंग टू सी। आपको फेंसिंग दिखेंगे, यू विल सी मिलिट्री पर्सन गार्डिंग द बॉर्डर्स, बट अगर आप गूगल करेंगे इंडिया एंड चाइना बॉर्डर आपको ऐसी कोई फेंसिंग नहीं दिखेगी। सो व्हाट इज द रीजन वाई डोंट वी हैव ए फेंसिंग ओवर द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना? सो रीजन नंबर वन, फर्स्ट रीजन इज कि ये जो पर्टिकुलर बॉर्डर वाला एरिया है ये एक कोई सॉफ्ट टेरेन नहीं है। द टेरेन इज वेरी वेरी रफ, देयर आर माउंटेन्स, देयर आर डेजर्ट, देयर आर वाटर बॉडीज, तो इस एरिया में फेंसिंग लगाना काफ़ी इम्पॉसिबल बात है। सेकेंड चीज़, जो एरिया है वो एकदम बंजर है, यानी कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे नहीं रहती है, तो दोनों ही कंट्रीज़ के लिए वहाँ पे इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है फेंसिंग लगाना। थर्ड थिंग इज़ दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है बॉर्डर्स पे,
कोई एक क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा वाला एरिया किसको बिलोंग करता है। तो अनलेस एंड अनटिल वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो, उससे पहले यहाँ पे फेंसिंग नहीं लगाया जा सकता है। और ये जो पर्टिकुलर डिस्प्यूट है ये सिर्फ बायलैटरल डिस्कशन से ही सॉल्व हो सकता है। पास्ट में काफ़ी सारे बायलैटरल डिस्कशंस हुए हैं, कुछ न कुछ उसके रिजल्ट्स भी निकले हैं, बट देन अभी भी बहुत सारे एरियाज हैं जो अभी भी डिस्प्यूटेड है। Lecture we spoke about the boundary issues between India and China. In upcoming lectures I'll be discussing boundary issues with Pakistan as well. Also चाइना के साथ हमारे और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि इंडियाज एंट्री इनटू यूएनएससी एंड द एनएसजी, क्यों चाइना हमारी एंट्री को ब्लॉक करता रहता है, इंडियाज अपोजिशन टू ओबीओआर, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका क्या इम्पैक्ट है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडिया यूएसए रिलेशंस, इश्यूज ऑफ तिब्बत एंड दलाई लामा, ये क्या इशू है, देन ऑल्सो इशू ऑफ मसूद अजहर एंड ट्रेड डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आने वाले वीडियोज में कवर करने वाली हूँ। सो हियर वी कम एट द एंड ऑफ द लेक्चर। आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। अकॉर्डिंग टू यू, what are the solutions for resolving India's border issues, particularly with China? Please put your opinion in the comment box. Thank you so much for watching the channel. If you have any questions regarding your SSB preparation, you can follow us on Instagram handle P3 Talks. If the content was helpful for your SSB preparation, please subscribe to the channel. Also share it with your friends. Thank you.